Hello everyone and my dear students, myself Surchi Singh, and today's video is about the appetite suppressants. In this video I will discuss about what is the appetite suppressants, their classification with their mechanism of action. So this video is going to be very beneficial for the both you for your knowledge and for your exam. So stay in the video till the last. Let's start. So the term appetite suppressants is used to denote the drugs that act primarily on the neurochemical transmitters of the central nervous system to reduce the food intake. So the appetite suppressants are those drugs which are used to suppress the food intake or used to reduce the food intake by acting on the central nervous system. So we can say that appetite suppressants are drugs that trick the body into believing it is not hungry. ओके इसमें क्या होता है, एपेटाइट सप्रेसेंट्स ड्रग क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को ये बिलीव कराती हैं कि ये हंग्री नहीं है. ये कैसे बिलीव कराती हैं कि ये हमारी बॉडी के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक्ट करती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू अपना मैकेनिज्म शो करते हैं. तो उस न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर एक्ट करके ये क्या कर रही हैं कि ये हमारी हंग्रीनेस को या फिर हमारे फूड इनटेक को क्या कर रही हैं, रिड्यूस कर रही हैं. सो अब ये सिंपल है, आप ये कह सकते हैं कि एपेटाइट सप्रेसेंट्स का यूज़ क्या है. एपेटाइट सप्रेसेंट्स वो ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं, भूख को कम करती हैं, हंग्रीनेस को कम करती हैं. ठीक है, तो यानी कि इनका यूज़ क्या है, ये किसके ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं, ये ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं. सो एपेटाइट सप्रेसेंट्स आर यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विथ ओबेसिटी. So the appetite suppressants are the drugs that trick the body into believing it is not hungry. Next point is appetite suppressants are used as a short term treatment for the patients with the obesity. यानी मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए ये शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती हैं, थोड़े समय के लिए आप इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मेडिकेशंस क्लासिफाइड एज द एपेटाइट सप्रेसेंट्स एक्ट अपॉन द बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी कि ये जो मेडिकेशन है एपेटाइट सप्रेसेंट्स जो ड्रग्स हैं वो किस पे एक्ट कर रही हैं, ये CNS पे एक्ट कर रही हैं एंड ट्रिकिंग द बॉडी इनटू बिलीविंग दैट इट इज़ नॉट हंग्री. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द classifications. What are the classifications of the appetite suppressants? The classification of the appetite suppressants are as follows. First category of this drug is the centrally acting adrenergic agents. The example in this category is the benzamphetamine, penteramine, diethylpropion, mazendol, phendimetrazine and phenylpropanolamine. These are the centrally acting adrenergic agents which are also used as the appetite suppressants or anorectic agents. Okay. Next category is the serotonergic agents. The example in this category is the dexfenfluramine, penfluramine and fluoxetine. And last one is the last category according to the classification of the appetite suppressant is the adrenergic serotonergic agents, and the example in this category is the C-butramine. So स्टूडेंट ये तो था कि क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है. अब मैं क्या करूँगी कि आपको इस ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं इनको मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी. तो ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं आपकी सेरोटोनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक. सेरोटोनर्जिक्स ये क्या है कि 5-HT आपको पता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उस पर एक्ट करती हैं. ठीक है, और इस पर एक्ट करके ये क्या करती हैं कि आपकी भूख को कम कर रही हैं, एपेटाइट को सप्रेस कर रही हैं. सो ये तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है. तो आज मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगी अबाउट द सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स विच आर ऑल्सो नोन एज द सेंट्रली एक्टिंग सिम्प्टोमाइमेटिक एजेंट्स.
The centrally acting adrenergic agents, which is also known as the centrally acting sympathomimetic agents. Okay, centrally acting sympathomimetic agents. Okay, so the mode of action, or we can say that the mechanism of action of the sympathomimetic appetite suppressants in the treatment of obesity is not fully known. So these medications have pharmacological effects similar to those of amphetamines. एम्फेटामीन्स का जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इन सारी ड्रग्स जो इसके कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आ रही हैं उनका भी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम टू एम्फेटामिन है, एक्सेप्ट मेजेंडॉल. मेजेंडॉल इसमें इस कैटेगरी में एक ड्रग आती है मेजेंडॉल. देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, ये देखिए यहाँ पे एक ये कैटेगरी है मेजेंडॉल. ठीक है, ये इसको छोड़ के ये सारी जितनी कैटेगरीज हैं, इन सारी जितनी ड्रग्स हैं, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम एम्फेटामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक्सेप्ट मेजेंडॉल. मेजेंडॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है. सो स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करती हूँ एक शॉर्ट टर्म में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये कैसे ओबेसिटी को रिड्यूस करती हैं, कैसे फूड इनटेक को कम करती हैं. The mechanism of action of the centrally acting adrenergic agents or the sympathomimetic agent is the it stimulates यानी कि centrally acting adrenergic agents stimulate the release of नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन. ये दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको क्या करती हैं कि ये ड्रग स्टिमुलेट करती हैं. और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर नर्व टर्मिनल में स्टोर होते हैं और जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस के फीडिंग सेंटर पे. ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है कि जब भी हम कोई एड्रेनर्जिक एजेंट, सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स देते हैं तो ये क्या करती हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के सिक्रेशन को क्या कर रही हैं, बढ़ा दे रही हैं, स्टिमुलेट कर दे रही हैं. और ये नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जो कि आपके नर्व टर्मिनल पे स्टोर होते हैं और ये नर्व टर्मिनल्स कहाँ होते हैं, न्यूरो हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होते हैं. और ओवरऑल ये क्या करते हैं कि ये जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज़ होंगे तो ओवरऑल क्या होगा कि आपकी जो एपेटाइट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एपेटाइट को सप्रेस कर रहे हैं. सो सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक द नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन एंड ओवरऑल प्रोड्यूसेस द डिक्रीज इन एपेटाइट. ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं, एपेटाइट को डिक्रीज कर रहे हैं. यहाँ पे एक ड्रग जो मैंने बताया था आपको मेजेंडॉल, ये क्या कर रही है कि ये यहाँ पे जैसे आपको पता है कि ऑल ड्रग्स क्या कर रही हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के रिलीज़ को बढ़ा रही हैं और इनके रिलीज़ से क्या हो रहा है कि एपेटाइट जो हो रही है वो सप्रेस हो रही है, एपेटाइट डिक्रीज़ हो रही है. मेजेंडॉल जो कि इसी कैटेगरी की ड्रग है बट वो क्या कर रही है कि इसके रीअपटेक को डिक्रीज़ कर दे रही है. तो इससे क्या हो रहा है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ये क्या कर रहा है, एपेटाइट को सप्रेस कर रहा है और एज अ वर्क कर रहा है एपेटाइट सप्रेसेंट्स. The next point is the other effects of the centrally acting adrenergic agents और सेंट्रली एक्टिंग एपेटाइट सप्रेसेंट्स. जो कि आपको पता है कि ये ड्रग क्या कर रही हैं, CNS पे एक्ट कर रही हैं और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रही हैं. तो नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन का इफेक्ट सिर्फ इतना नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं, एपेटाइट को रिड्यूस कर रहे हैं, इनके साथ साथ ये अदर भी इफ़ेक्ट शो करते हैं हमारे हार्ट पे और अदर बॉडी के ऑर्गन्स पे अपना इफेक्ट शो करते हैं. सो द अदर इफेक्ट्स ऑफ द सिम्प्टोमेटिक एपेटाइट सप्रेसेंट्स प्रोड्यूसेस CNS स्टिमुलेशन एंड एलिवेशन ऑफ द BP. यानी कि ये CNS को स्टिमुलेट कर रहे हैं और BP को बढ़ा रहे हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स इज द इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड BP, स्वेटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया मीन्स लैक ऑफ द स्लीप एंड द लाइट हेडेडनेस, सर का हल्का हो जाना. तो ये था, ये आपको मैंने किसके बारे में बताया, ये अभी तक मैंने आपको बताया सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स विच आर यूज्ड एज द एपेटाइट सप्रेसेंट्स. ओके, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया, उसके अदर इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया.
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अदर्स एपेटाइट सप्रेसेंट्स। अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस किया वो था जो क्लासिफिकेशन के अंदर स्पेसिफाई की गई थी ड्रग्स जो कि एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह यूज होती हैं। अब मैं आपको वो ड्रग्स के बारे में बताऊंगी जो कि कैटेगराइज्ड हैं किसी और डिजीज़ के लिए, ठीक है। कोई डायबिटीज़ में यूज हो रही है, कोई किसी और डिजीज़ के लिए यूज हो रही है, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या कर रही हैं, एपेटाइट को सप्रेस कर रही हैं। तो अब हम उन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। The first drug is the liraglutide. It was also marketed as the diabetes treatment under the brand name of the Victoza. Victoza के नाम से ये ड्रग मार्केट में थी जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होती थी। यू कैन टेक दिस एज एन इंजेक्शन, ठीक है, आप इंजेक्शन के फॉर्म में इसको ले सकते हो। एंड द ड्रग विच इज़ द नेम ऑफ द ड्रग इज़ द लिराग्लुटाइड विच डैम्पेंस द हंगर बाय एक्टिंग ऑन द हार्मोन इन द गट। गट में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिनके ऊपर एक्ट करके ये क्या कर रही हैं कि भूख को कम करती हैं, भूख को मार देती हैं, डैम्पन कर देती हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट ड्रग लिराग्लुटाइड। The name of the next drug is the naltrexone, which is used as the appetite suppressant. It works on the hypothalamus, and hypothalamus is the part of the brain that regulates the appetite, temperature and other functions. So it contains two medications may affect the system of your brain. So eating certain foods that would normally make you feel good no longer. यानी कि जो खाना आपको खा के अच्छा लगता था, इस मेडिकेशन को लेने के बाद क्या होगा कि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, जिससे क्या होगा कि आप उसको खाना कम करोगे, आपकी भूख क्या होगी उस खाने के लिए ख़त्म होती जाएगी और ओबेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपकी अदर्स कैटेगरी की ड्रग थी जो कि आपकी क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं थी। यहाँ पे मैं आपको एक ड्रग और बताना चाहूँगी। द नेम ऑफ दैट ड्रग इज़ द टोपिरामेट। ओके, द नेम ऑफ ड्रग इज़ द टोपिरामेट। ओके, the topiramate is a medicine used for especially used for the seizure headache। हेडेक और सीजर के लिए यूज़ की जाती है, बट एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्बो विथ फेंटेरामिन। जब आप इसको क्या कर रहे हैं, फेंटेरामिन के साथ दे रहे हैं, ठीक है। फेंटेरामिन आपको पता है, आपने अभी पढ़ा है फेंटेरामिन क्या है, ये सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एपेटाइट सप्रेसेंट ड्रग होती है, ठीक है। टोपिरामेट जो कि यूज होती है सीजर में या हेडेक में, इसको जब आप क्या करते हो फेंटेरामिन के साथ देते हो, ठीक है, कॉम्बो विद द फेंटेरामिन में मेक यू फील लेस हंग्री एंड मोर फुल, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको भूख कम लगेगी और आपको फुलनेस लगेगी, ठीक है। तो ये एक अदर ड्रग थी जो कि इस कैटेगरी में आ सकती है, यूज होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ओबेसिटी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द एपेटाइट सप्रेसेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते क्या हैं। इसका अनदर नेम है एनोरेक्टिक एजेंट्स, दूसरे नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, और अदर्स ड्रग्स जो कि क्लासिफिकेशन में नहीं मेंशन है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।